इसके अलावा विश्वविद्यालय है जिनका संरक्षण सहयोग को मिलता है और पूरे राष्ट्रीय स्तर की सबकी दूरदर्शी सोच और निर्णय लेने की क्षमता के कारण योग अल्टरनेटिव मेडिसिन संकाय की स्थापना हुई है और इसमें यूजी से लेकर पीजी तक सारे कार्यक्रम संचालित होंगे। तो सबको मैं आभारी व्यक्त करता हूँ और योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कार्य कर आपने किया। तो सारा प्राकृतिक चिकित्सा योग दर्शन से जुड़े हुए लोग आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में श्री राजू शर्मा सर भी मौजूद हैं। लगातार छोटे भाई की तरह आप समय प्रदान करते हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में जब मुजफ्फरनगर के आप डीएम थे तो आपने ऐतिहासिक कार्य किया था। योग और होम्योपैथी दोनों को मिला करके करीब कई लाख लोगों को लाभान्वित किया था। मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड है। आप हमारे बीच में आपका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय के उपस्थित हैं। आपका प्रशासनिक अनुभव और सारी चीज़ें विश्वविद्यालय को मिल है। हम सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और सभी अवसर पर आप लोगों का स्वागत करना चाहते ठीक। माननीय कुलपति सर से अनुरोध करना चाहूँगा अपने मौलिक मार्गदर्शन से अभिसूचित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति। डॉक्टर यादव, ये देश की वर्तमान और विश्व की वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर योग और प्राकृतिक चिकित्सा का
relevance has increased. It has always been so very significant, extremely significant for human life and for society. But considering the prevailing situation of the world, this has attained greater attention and also increased realization of the significance that yoga can deliver to the mankind. Now, very interesting thing. There are two observations that I have got to make with respect to while releasing the book. First is that an educational institution is certainly known not just by teaching, but also by research and extension activity. Coming up with a book that has been authored by a renowned Honorable Justice D.P. Singh Saab and has been edited by a faculty member of this great seat of learning, this provides the other two aspects of university, that is research and extension. This is a perfect example of collaborative research where institution, that is the university, is reaching out to society, identifying the people who are experts in their respective domain, collaborating with them, and coming up with a publication that is meaningful not just for academics but also for the society at large. So this is a perfect example. For that I congratulate Dr. Amarjeet Yadav, who is a faculty in our Department of Yoga. I am also so extremely happy to share this with the august audience, is that realizing the increasing significance of yoga in human life and in Indian society, and with the increased emphasis by our Honorable Prime Minister towards letting people realize the importance of yoga and practice also, we have created a faculty of yoga and alternative medicine. To start with, we have started with two departments. One is Department of Yoga and second is Department of Naturopathy. This year only, we have recently introduced our admissions to the programs. They have got programs starting from diploma to undergraduate to postgraduate. We have already been running all these programs, which shall now be merged with this faculty, and that will run under the faculty AGs. So we are very serious. We want active contribution of the society in letting us set up our laboratory, to act as a teaching mentor, not just as teaching faculty, and serve the purpose of yoga for the good of the mankind and society. So I congratulate Justice D.P. Singh Saab, the editors Dr. Amarjeet Yadav and Professor Sohan Raj Tater ji, and I request them to keep working on this academic endeavor. My sincere congratulations to everyone. Thank you. थैंक यू सर। विचार प्रस्तुतिकरण के अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ जस्टिस D.P. सिंह सर का। आप कानूनी स्तर पे देश के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा योग, अध्यात्म, वेद, उपनिषद की तमाम व्याख्याएं आपके संज्ञान में है और मैं समझता हूं कि इसको लिपिबद्ध करने का गतिमान कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। तो सर आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर अपना सुगंधित संदेश प्रदान करने की कृपा करें। सर। धन्यवाद यादव जी। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राय और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य शर्मा जी और विनोद कुमार जी और मीडिया के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग जो भी यहाँ, एक आश्चर्य की बात मुझे आज लगी कि शर्मा जी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर हैं यहाँ बैठे हैं, तो योगा में PhD उस जमाने के। अच्छा लगा सुन के, हमारी ब्यूरोक्रेसी में इतने अच्छे ऐसे विद्वान लोग हैं। पुस्तक लेखन जैसा मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान मुझे वक्तव्य देने का मौका मिला योगा पे।
उसी में जो मैंने स्पीच दी थी उसी को परिवर्तित रूप की पुस्तक है। उच्च न्यायालय में सेवा के दौरान एक प्रश्न हुआ कि राज्य सरकार योगा को रजिस्टर करके मान्यता दे या न दे। जो भी तत्कालीन सरकार थी वो डालती रही सेकुलर कंट्री के होने की वजह से। तो मेरी बेंच में आया तो मैंने उस रिट को अलाउ की और मेरे साथ दूसरे जज थे अरविंद कुमार त्रिपाठी डिवीजन बेंच के बाद। मैंने डायरेक्ट किया था उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को आप योगा को मान्यता दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आई। अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में अपने प्रभाव के द्वारा 21 जून प्रतिवर्ष योगा डे मनाने का प्रारंभ मनाने हेतु मान्यता प्राप्त की। आज पूरे विश्व में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। ये अच्छा है कि हमारी जो परंपरा है योगा की पूरे विश्व को इससे लाभ मिलेगा। जब हम योग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम आसन प्राणायाम करते हैं ये योग का एक बहुत छोटा सा अंग है। 10% में लीजिए 20% का। वास्तव में योगा जो मूल योगा है वो श्री राम के जमाने से जो शुरू हुआ था उसकी डेप्थ किसी ने उस पर प्रयास नहीं हुआ, शोध नहीं हुआ कि कैसे विश्वामित्र ने श्री राम को योगा की दीक्षा दी। महर्षि वशिष्ठ ने कैसे राम को योगा से सम्मिलित किया। योगा का पर्पस मूलतः दो है, अपने सदायु की नर्वस सिस्टम की सारी बाधाओं को दूर करना, दूसरा आदमी का एनर्जी लेवल बढ़ाना। हम जो भी कार्य करते हैं ये एक एनर्जी है जो इस वातावरण में मौजूद है कॉस्मिक फॉर्म में। योगा द्वारा हम उसे अपने में समाहित करते हैं। ये दो मेन मुख्य कारण है योगा के। आध्यात्मिक रूप से जाइए अगर तो खैर उसके तो बहुत से विषय संक्षेप में हम डिस्कस करते हैं। योग कई तरह के हैं, मंत्र योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, राजयोग। गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन वह परम योगी माना जाता है जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपना मानता है और सर्वत्र समभाव देता है। यानी एक योगी की निगाह में न कोई जाति है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। योगी जब सबको राम में मानिए तो वही योगी। ये था। अब आसन का क्या महत्व है? छंदोग उपनिषद में इस शरीर को कहा गया है ईश्वर का घर, ब्रह्मपुर का ये उपनिषद में। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इस हिंदुस्तान में दो धाराएं चली, एक उपनिषद एक कर्मकांड। वेद के अलावा जो बात कर्मकांड द्वारा विभिन्न क्रियाओं द्वारा हम आराधना ईश्वर की करते हैं। उपनिषद जीवन में व्यवहार द्वारा करते हैं। आसन, प्राणायाम, योग ये सब उपनिषद की देन है, पूरी उपनिषद की देन है। तो जब हम उपनिषद पे जाते हैं और तो उपनिषद पहला बिगिनिंग है, हम अध्ययन करेंगे, मैं थोड़े में बताता हूँ। तो उपनिषद से ही कई ऐसी चीजें जो आपको कहीं भी किसी योग में नहीं मिलेगा जो आपको उपनिषद में मिल जाएगा। ऐसा पीछे जाता हूँ, भगवान राम को योग की शिक्षा विश्वामित्र ने दी। रामायण के 22वें सर्ग में भगवान राम ने जब वध के लिए ले जा रहे थे राजा दशरथ से मांग के राक्षसों की, तो सर्वप्रथम उन्होंने
योग की जो नामकरण किया, बला और अति बला, ये दो नामकरण योग कर दिया। इसका क्या प्रभाव था कि आदमी कितना भी काम करे, 24 घंटे, चाहे आप सोइए चाहे जागिए, आप जो है कभी थकेंगे नहीं। तो राम को विश्वामित्र ने पहले इस योग की शिक्षा दी। और जब इससे आगे बढ़ते हैं जंगल में, 22वां शब्द देखिए, और उन्होंने कहा कि रघुनंदन इसका अभ्यास करते रहिए। वाल्मीकि ऋषि का अभ्यास का सब मतलब ही है कि यौगिक क्रिया थी। सोचिए, योग में इतनी ताकत है कि आप बिना भोजन पानी के 24 घंटे आप कार्य कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, बाहर जाते हैं 9 दिन नवरात्र में, पानी और लौंग लेके रहते हैं। ये तो कहीं न कहीं कोई यौगिक पद्धति उन्होंने अपनाई। बड़ा आश्चर्य होता है, उनको गाड़ी 2002 से मिल रही है, फिर भी शांत भाव से है, कभी क्रोधित नहीं आ पाएंगे। और जो काम हो गया पिछले कुछ सालों में, वो शायद असंभव था 70 वर्ष के इतिहास में। तो योग का प्रभाव है। फिर तारका के वध के बाद आइए रामायण के 27वें सर्ग में, फिर वहाँ विश्वामित्र शिक्षा देते हैं राम को, राम तुमने तारका का वध किया, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें और ज्ञान दे रहा हूँ। उन्होंने अनेक अस्त्रों की शिक्षा दी और कहा कि ये देवता, असुर, गंधर्व, नाग कोई भी हो, युद्ध में तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। अब देखिए, योग के द्वारा उन्होंने जो विश्वामित्र ने सीखा था 87वें सर्ग में जाइए, वो सीधे ट्रांसफर किया मानसिक रूप से। हम क्लास अटेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, सीखते हैं, टीचर बताता है, पढ़ाता है, वहाँ नहीं। यानी राम में वो क्वालिटी थी, वो गुण था कि बिना पढ़े मानसिक ट्रांसमिशन अगर होता है कि योगी कर सकता है। ऐसे हुए ऐसा जिस पे कभी विशद रूप में हम चर्चा हुई, बताएंगे कि कैसे हुए। जहाँ क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सारी क्रिया विश्वामित्र ने उनको शस्त्रों की शिक्षा मानसिक ट्रांसमिशन द्वारा दी। 27वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण में है, उन्होंने कहा कि ये जो अस्त्र हैं, जो शस्त्र हैं, जो उनके नाम बताए, आप देखेंगे 27वें सर्ग में, उनसे शिक्षित होने के बाद भगवान राम में और शक्ति संचार हुआ, उनके चेहरे की आभा बढ़ गई। ये सारे हथियार जो आप देखें, अभी गाइडेड मिसाइल है, उसको लोग मजाक उड़ाते थे हिंदुस्तान का, यानी कैसे बाढ़ से निकलेगी। और अब हमारी राह को पढ़िएगा, हमने बताया कि एटम बम था यहाँ ब्रह्मास्त्र में, राम राज्य वाली किताब मैंने एक DC साहब को भेंट किया। तो ये गाइडेड मिसाइल क्या था, यानी अस्त्र को मानसिक शक्ति द्वारा बाढ़ को जिस कार्य के लिए आप छोड़ रहे हैं उतना ही डैमेज करेगा, जिस तरफ भेजेंगे वो उधर जाएगा। और अब बनी है गाइडेड मिसाइल। तो यौगिक क्रिया के फलस्वरूप जो शक्ति अर्जित किया भगवान राम ने, जो बाण विश्वामित्र ने उन्हें सिखाए, शक्ति ट्रांसफर किया, वो उसकी क्वालिटी ये थी तो मानसिक संप्रेषण द्वारा कार्य करती है। आपने बाढ़ ली, मंत्र सिद्ध किया और छोड़ दिया। दुनिया मजाक उड़ाती थी, अब वही काम कंप्यूटर से कर रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान था। फिर विश्वामित्र ने उनको और भी अनेक शस्त्र दिया, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी था। उनका बहुत से नाम उन्होंने दिया अस्त्रों को, सत्यवान, सत्य की, दृष्ट, रभस, प्रतिहार तक, ऐसे दर्जनों अस्त्रों द्वारा श्री राम को उन्होंने सुसज्जित किया और सारा यौगिक क्रिया का एक अंग था। मुझे कहीं नहीं, जब मैं जजमेंट लिखा रहा था, मुझे कहीं नहीं मिला कि इस पर कोई रिसर्च वर्क किया गया। ऐसे नष्टि को करना चाहिए। योगा के लिए आप अगर शोध करें तो इन शक्तियों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है।
बहुत से बुक किताबें लिखेंगे योगा में, रामायण, गीता, उपनिषद, पातंजलि का योग सूत्र, वेद व्यास का योग भाष, वाचस्पत मित्र का तत्व वैशाली, भोज का भोजवृत, गोरक्षक सतत बाबा गोरखनाथ का, स्वामी स्वात्मा राम का है, हृदय योग प्रदीप का आदि। बहुत सी पुस्तकें पुरानी हमारी हैं जिसमें योग पे आप पा सकते हैं। लेकिन मुझे जो मिला 3 चीज, रामायण, गीता और उपनिषद, 3 ही मूल स्वरूप है योगा के, जिनसे मेरे विचार से, अब इंडस्ट्री है तो यहाँ शोध कार्य होता है, आप कहीं और देखिए, सब इसी से लिए गए हैं उपनिषदों से। जितने भी योग का है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कहते हैं ना पहले महिलाओं को नहीं करना है, उनको नहीं पढ़ना है। उपनिषद क्या कहता है? त्वम स्त्री त्वम पुमानस त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णा दंडेन वंचसी त्वम जातो भवस विश्ववतो मुखा। तुम्ही स्त्री हो, तुम्ही पुरुष हो, तुम्ही कुमारी भी, तुम्ही दंड के सहारे चलने वाले वृद्ध हो, तुम अनेक रूप में रूपाई थी। यानी कहीं मतभेद नहीं किया उपनिषद ने ज्ञान के क्षेत्र में। औनत का कारण क्या है? हमारे उपनिषद फिर कहता है अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मना तिरस्करणात् आत्महन इत्युच्यते। अविद्या दोष के कारण मनुष्य नित्य अपनी आत्मा की अवहेलना करता है, इसलिए कहा जाता है कि वह आत्मघाती है। इस पुस्तक में मैंने 2 उपनिषदों का विशेष जिक्र किया है, जैसे मैंने लिया है योगा के बारे में। अमृत 2 उपनिषद, दूसरा योग चूड़ामणि उपनिषद। 2 के श्लोक हमने इसमें प्रमाण किए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण कहाँ शरीर में रहता है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस दिन अपने स्पीच पे आया था, मैंने कहा बताओ दुनिया में प्राण कहाँ है? कितने डॉक्टर चीरते हैं, दिल से लेके सब प्राण मिलता है उनको, आश्चर्य होता है। तो इस उपनिषद में योग चूड़ामणि प्राण दिया है, डिफाइन किया है विद अथॉरिटी कि आपका प्राण यहाँ पर है। अब ये तो कहने की बात है। और इसीलिए ये जो प्राण वायु है, ये जो प्राण है, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। कि प्राण जो है आपके शरीर में लगातार मूवमेंट करता रहता है। अब साइंटिफिकली हर सेल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा आसानी हो जाता है। बहुत पहले बीएससी किया था, तो घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, है ना, तेजी से। अब ये कब कैसे इन्होंने लिख दिया कि इसको मूवमेंट रेगुलर होता है प्राण का। जैसे फुटबॉल में बॉल जो होता है, वो कहता है उपनिषद किक मारते रहते, वो चलता रहता है पूरे मैदान में। तो ये हमारा प्राण वायु जो प्राण जो है, एक जगह नहीं है विश्व में। हर सेल तो आपका मूवमेंट में है, मोशन में है। इसीलिए जब आप एक हाथ काट देते हैं तो भी आप जिंदा हैं, दिल बदल देते दूसरा आया फिर भी जिंदा है, क्योंकि वो प्राण अगर एक जगह होता, कहते जीवन निकल रहा, निकल अरे आपका पूरा शरीर ही कहते हैं ये मंदिर है, ब्रह्मपुर है, उपनिषद कहता है। इसी से सब कुछ संचालित होता है। तो प्राण इसी पूरे शरीर में, इसकी ताकत को कैसे बढ़ाएंगे? योग द्वारा, कहता है उपनिषद। नहीं, इसकी मूवमेंट को, इसको जब हम चार्ज कर देते हैं यौगिक क्रियाओं से, तो इसके दोनों यूज हैं पॉजिटिव तरीके। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं किसी योग को मत दिखाइए योगा, ये योगा नहीं तो सिखाइए, शरीर के लिए चलता है। देखिए ना, एक हमारे आते हैं टीवी पे, वो खटाखट प्राणायाम करते, धड़ 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 मारते हैं आंख नाक से, ये नहीं है प्राणायाम। ये डिफाइंड है, आप कुछ पढ़ेंगे। प्राणायाम में कहता है उसके आसन में बैठिए योगा करने के लिए, जो ये कहता है
मार्शल को, जैसे आर्मी वाले हैं इनको क्या हिरन के आसन पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़ा बिछा कर, लेकिन उस आसन पे बैठ के योगा की जाती है, पूर्व मुख या उत्तर मुख, तो योगा करने के लिए। और ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, मैं हरिद्वार भी गया था एक बार समझने के लिए क्या योगा है, तो उन्होंने बताया 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 4 1। अब मैंने कहा ये स्वामी जी आप क्या बता रहे हैं, अच्छे योगी हैं। कहे इसका मतलब जिस स्पीड से आप अंदर ले जाते हैं उतना ही कुंभक उतना ही रेचक, उसी स्पीड से आप निकालिए, उतनी देर रोकिए सांसों। अब इसी को घटा बढ़ा के एक रिदम है प्राणायाम, और एकदम करा रहे हैं। आजकल जब देखता हूँ मुझे आश्चर्य होता है, देखिए ज्ञान तो है, मैं योगी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो न्यायालय ने सिखा दिया कि जज को सारे काम करने पड़ते हैं, तो लीगल नॉलेज या पढ़ के जो नॉलेज है वो हमने गेन किया। तो अब देखो एक रिदम नहीं है जिस प्राणायाम से क्या फायदा। हर चीज योगा में डिफाइंड है, कौन सा आसन आप कैसे करें। उछल कूद कर रहे हैं, अरे ये नहीं है योग। उछल कूद कर रहे हैं आप, धड़ाधड़ पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, अरे बंदर का काम थोड़ा ही होगा। योगा का काम दूसरा। देखिए रावण ने जब योग विद्या के द्वारा तपस्या की तो शंकर का वरदान पाया, लेकिन वो सुपात्र नहीं था। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को उसने पलूट होके राक्षस वृत्त अपना के पूरा नष्ट किया। अहम आ गया था, घमंड आ गया था। तो ये दिक्कत है। योग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऋषियों ने कोडिफाई किया है, सबको नहीं मिलना चाहिए। उसका वो वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि वो उसका वो अब्यूज करेगा। देखिए बहुत से बाबा लोग हो गए हैं, रेप में पकड़े जा रहे हैं, चोरी में, डकैती में, सब जगह फंसे हुए। ये क्यों हो रहा? वो गेरुआ पहन के वही 2-4 आसन सीख के सर पैर ऊपर सर नीचे करके वो आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं, मेरा अपना मानना है। योगी तो बहुत ही बड़ी चीज है। विदेश में देखिए वो पकड़ा गया है अमेरिका में जो योगा का केंद्र चलाता था। वासना, क्योंकि 3 चीजें ह्यूमन लाइफ में है। संकल्प, पहला संकल्प, दूसरा कर्म, तीसरा प्रारब्ध जो हम पूर्व जन्म करेंगे। इन्हीं से तीनों चीजों से बनता है। इसको इनर्जाइज करते हैं हम योगा द्वारा। ये योगा नहीं भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं है। आपका ये तीनों बिंदु फॉलो कर रहे हैं, जीवन तो चलता है, लेकिन कुछ इम्प्रूव कर रहा हो आपको, तो यौगिक क्रिया तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम आगे बढ़े। और योगा का अगर हम शस्त्र की तरफ मोड़े, जो ज्ञान को हम यूज करना चाहें, जो हमारे कृष्ण और राम ने किया था, उस चीज की शोध की बहुत आवश्यकता है। एक श्लोक उपनिषद का ही मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वभूतस् महात्मानम सर्वभूतानि चक्मनि छेद योग युक्ताम सर्वत्र समदर्शन। यानी योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूत हुए और भूत मात्र को आत्मा। बिल्कुल पहला ये तो अगर दुकान कर रहे हैं, हम कुछ बेच रहे हैं माल बाजार में, हम योगी नहीं हैं, क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। योगी तो सबको एक साथ देखता है। यानी हमने थोड़ी सी आसन सीख ली, उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए। अच्छा, जो अच्छा योगी है, एक चीज हमेशा याद रखिए, कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी जो है किसी के दरवाजे नहीं जाता। कृष्ण कहते हैं गीता में, आज भी सत्य है, जिसको ज्ञान होगा, जो विद्वान होगा, उसके यहाँ आपको जाना है, उसकी सेवा करनी है और उसको प्लीज करना है, तब अंदर से ज्ञान की बातें निकलती। ये भगवान कृष्ण गीता में जो कहे हैं वो आज भी सत्य है।
ये जो लोग आपको घूमते हुए मिलते हैं ये योगी नहीं है, रट लिए हैं। अगर हम गीता भी रट लिए हैं तो आत्मसात नहीं किए उसे। बहुत से मिलेंगे, पूरा रामायण पढ़ जाएंगे, अंदर से चरित्र देखो कौन सा आसाराम बापू कौन थे। तो ये तो इसको मतलब मत लीजिए। हमारी जनता हिंदुस्तान की इतनी भोली है, इतनी सीधी है, इतनी भली है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती लोगों में। नहीं तो योग तो ऐसी चीज है कि योग की बहुत कुछ दे सकता है। एक चीज मैंने और की सावधान किया है कि योगा, सेलेक्टिव योगा आर्मी वालों के लिए होना चाहिए। सूर्य प्रणाम बहुत अच्छी चीज है, सूर्य आसन जो करते हैं ये आर्मी के लिए फिट है। लेकिन बहुत से योगा ऐसे हैं जिनको अगर हम आर्मी वालों को कराएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि उनको जो दुश्मन आ रहा हो समझेंगे तो मेरा देश है, गले लगाना इसको मारते। तो वहाँ तो शौर्य चाहिए। इस पे सोच की जरूरत है कि कौन से योगी क्रिया हम अपने फोर्स के लोगों के लिए हम वो करें। ये आपकी यूनिवर्सिटी चूँकि रिसर्च करती है, इनको सिलेक्टेड योगा का लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन से योगा हम प्रिस्क्राइब करें अपने आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, फोर्स के लिए। हर व्यक्ति के लिए एक ही योगासन नहीं है, डिपेंड करता है किस नेचर का आप जॉब कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें योगा में जो गेन होती हैं वो सबके लिए नहीं है कि हम सबको उन चीज़ों को दें। उसी को माइंडसेट को चूंकि योगा बदलता है, कंट्रोल करता है। इस चीज़ पे भी सोच होनी चाहिए कि हम क्या करें। अंत में एक चीज कहूँगा, कोई भी क्रिया हो उसे पॉल्यूशन फ्री वातावरण चाहिए। अगर आप ऊंचे जाना हो, यानी प्राकृतिक वातावरण अगर हो, घर में सफाई हो, आपको क्लीन एयर मिल रहा हो, क्लीन वाटर मिल रहा हो, तभी योगा फलीभूत होगा। आपके नर्वस सिस्टम जागृत होंगे उस कॉस्मिक एनर्जी से। ऋग्वेद का एक सूत्र है तो हिंदी में हम आपको बताते हैं, आओ हम विकृत जीवन छोड़कर प्रकृति की तरफ आए, खंडित अवस्थाओं से निकलकर अखंडित की तरफ आए, द्वितीय के संसार को त्याग कर आदित्य का अवलंबन करें। अप्राकृतिक विकार में जीवन जीकर हम बहुत कष्ट पाए हैं। समय आ गया है कि हम थोड़ा चीज जाए। कंक्लूडिंग में एक आपको हम थोड़ी सी, मेरा अभी 1 घंटा मेरा रामराज पे चला है वेबिनियर में, पूरी कंट्री में हुआ था, वो तो मिल जाएगा। ये जो हमारे यहाँ कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग की बात की गई है, ये आती नहीं है, याद रखिए। हमने इतना धर्म भीरू हो गए हैं, अरे भैया कलयुग है, गांव भर जाए ही तो होता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो राम का, कृष्ण रामायण कहता है, महाभारत कहता है कि युग जो है ये शासक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा युग बनेगा। यानी शासक मीन्स प्रजातंत्र है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारी विधायिका। सत्ता में बैठे लोग अगर राक्षसी वृत्ति के हैं तो कलयुग का प्रभाव ज्यादा होगा। ये आपको सप्रमाण मैंने अपने हिस्ट्री में दिया, राम राज्य वाले में। यानी हम लाते हैं, कलयुग एक एडजेक्टिव है जो प्रतिबिंबित करता है कि किस तरह के लोग शासन चला रहे हैं। अगर ऊंच नीच, छुआछूत, ऊपर नीचे, बड़े गंदे भर, प्रेम बढ़ रहा, चरित्रहीन बढ़ रहा, महिलाओं को परेशानी हो रही देश में, इसका मतलब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उसमें बहुत से रेपिस्ट हैं, बहुत से क्रिमिनल माइंडेड हैं, बहुत से का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। वो कॉस्मिक एनर्जी को प्रभावित करते हैं ऊपर से नीचे तक। मेरा मानना है
जब गोफर्स कांड हुआ था, ठीक है ना, तो लेखपाल भी कहने लगा ना, जब प्रधानमंत्री पैसा ले रहा है तो मैं क्यों न लूँ। ये तो गाँव के जो रहने वाले होंगे जानते होंगे, ऊपर से चलता है सब कुछ। तो योग जो है, अगर ऊपर योगी बैठा है, राम योगी थे, उन्होंने राम राज्य में लिखा, कृष्ण 16 कला का अवतार थे, वो तो दुष्टों का संहार के लिए जन्म ही हुए थे, लेकिन वो सब योगी थे 100%। तो जनता भी वैसे ही अच्छी पाई, आराम पाई, जनता की रुचि जगी थी, जनता भी अध्ययन करती थी, योग करती थी, और जनता नहीं युद्ध भी करता था, राक्षसों से लड़ाई तो होती रहती थी उस समय भी हम लड़ते थे। ऐसा नहीं है कि कोई राम राज तो मतलब राक्षस नहीं, राक्षस तो थे, रावण था, कंस था, वो मारने का काम चलता रहता है। गीता कहती है दो ही तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे, तीसरा होता ही नहीं। अब बुरे लोगों की संख्या तब बढ़ जाती है जब बुरे लोगों में से कुछ लोग सत्ता में आ जाते हैं, यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और योगा का उत्थान तभी होगा जब हम व्यवहारिक जिंदगी में कहते हैं भोजन पहला कंट्रोल होना चाहिए योगा के लिए। लिमिटेड भोजन जीने के लिए, और भोजन के लिए मत चिंता रही, जीने के लिए, भोजन के लिए, ये पहला कंट्रोल कहते हैं। रामायण में भी है और आप सब जगह पाएंगे, पतंजलि ने भी यही सब जगह यही कहते हैं, भोजन का कंट्रोल। मानसिक ब्रह्मचर्य कंडीशन प्रेसिडेंट है योगा। आपने किसी ने पढ़ा होगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, स्वामी जी का जो है एक किताब, बहुत अच्छी फेमस पुस्तक है, स्वामी योगानंद का। उन्होंने कहा है, मैं तो उसको कम से कम 20 खरीद के देता हूँ जैसे, वो बहुत अच्छी किताब। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी मेरी माँ के पास साल में एक बार जाते थे, तो मेरे 8 भाई हुए, एक ही बार, सिर्फ पुत्र उत्पत्ति के लिए संसार का विधान। तो ये ब्रह्मचर्य अगर नहीं है तो भी योगा नहीं। रेगुलेटेड लाइफ होनी चाहिए, मिनिमम झूठ न बोलो। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, योगा की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर हम आउटर योगा करेंगे, यानी टीका लगा लेंगे, पहन लेंगे, वो गेरुआ पहन लेंगे, योगी बने रहेंगे, जनता पेड़ चलाते रहेंगे खटाखट खटाखट, ये सब योगा है। तो आप इस पुस्तक में पाएंगे छोटी सी, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा कैसे होती है। ये कुल 8 चैप्टर में मैं नाम ले लूँ, योग का थोड़ा सा परिचय दिया है। प्राचीन योग क्या था, ब्रह्मचर्य क्या है, प्राणायाम क्या है, योग के मूल तत्व क्या है, ब्रह्म की अवधारणा क्या है, योगाभ्यास कैसे किया जाए, और जीवन का भाव क्या है, समग्र जीवन। इस पर मैंने एक दिया है कि क्या कहते हैं कि ये बहुत पहले 1966 में सोशियोलॉजिस्ट का एक मीटिंग हुआ था रशिया में, तो वहाँ उन्होंने पूरा विश्व भर के विद्वानों ने तय किया कि नहीं, कोई छोटा बड़ा वो चीज़ नहीं, जो कहते हैं हमारी जिंदगी नहीं, सब बराबर। ये सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी रेफरेंस दिया है। तो कोई भी सीख सकता है योगा, उसमें कोई बंधन नहीं है। सवाल ये है कि उन्नत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और खास तौर से वाइस चांसलर साहब को। आज बहुत बिजी प्रोग्राम था इनका, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर बोलते हैं। तो यौगिक क्रिया तो जब तक आप कुछ कंडीशन बॉडी को नहीं स्टीबलाइज करेंगे नहीं हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबको।